with a binary code. Means you can represent your binary number in different format, but ultimately it is in a pattern of zeros and ones. Here 5 binary codes are given, not only 5 but numbers of binary codes है जिसके थ्रू आप बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो बाइनरी कोड्स फॉर डेसिमल डिजिट. सो डेसिमल डिजिट में फर्स्ट है, इट इज a BCD, बाइनरी कोडेड decimal. So it is a 8421, means that this 8421 it is nothing but weight, so a weight or position of this particular BCD code. Okay, 2 raised to 0 means 1, 2 raised to 1 means 2, 2 raised to 2 means 4, and 2 raised to 3 means 8. Okay, so weight it is a 8, 4, 2 and 1. Depend upon weights we can write this number or put a 1 at particular position. Like if it is a 0, so we can simply write 0 0 0 0. But if it is a 1, then we have to put 1 at the 1 weight position. Okay, if it is a 2, तो 2 कहाँ पे है इस weight पे? second number पे. So we have to write 1 in second number position. Same for 3. So 3 means it is a 2 plus 1. So it is a 1 and 1. Because we combine this 2 plus 1, then we can find 3. So we have to put 2 ones at this 2 position, at 1 as well as second. Same for 4. So you have to write third position. You have to write 1 in third position because 4 weight it is in third position. Okay, these are the weights. Okay, fifth. So we can simply write 4 plus 1. So it is a 4 and plus 1. So it is a 4 plus 1. Same 6. 6 it is nothing but 4 plus 2. So we have to write here 4 plus 2. So 2 1 in middle. Same for 7. So 7 means 4 plus 3. So it is a 4 plus 2 plus 1. So we have to write 1 at starting 3 position. And 8. So we have to write 1 at 4th position. Means it is a 2 raised to 3 means 8. And 9 it is simply 8 plus 1. So it is a 1 here and second one here. So we can write 1001. But if you know that if we consider the 4 bits, so 2 raised to 4 combinations are possible. Okay, if there are 4 bits, so 2 raised to 4 means कितने combination बना सकते हैं by using 1 and 0? 16. But this BCD using only 0 to 9. BCD, binary coded decimal, both are same up to 0 to 9. Okay, binary number, pure binary or BCD, both are same up to 0 to 9. Because BCD सिर्फ 9 तक ही वैल्यू देता है आपको. आफ्टर दैट कितने बचे रिमेनिंग? 6, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 means total 6. These 6 are illegal codes. So if you perform the binary addition or subtraction, if these illegal codes are generated, then we have to add in your addition 6. 6 हमें ऐड करना पड़ेगा. And why this only 6? Because 6, 15 minus 9 कितने बचेंगे? 6. 6 illegal codes है. That's why we have to add 6. Okay, these are the legal codes from 0 to 9. And जो 10 to 15 है, these are the illegal code for the BCD. Same for XS3 second. Okay, this particular BCD it is depend upon weight. आपने कैसे लिखा? 8421 weight पे depend. Okay, so simply depend upon weight. But XS3, so XS3 we have to just write, we have to add 3 in BCD. XS3 we can directly obtain by addition of BCD plus 3. मतलब BCD जो भी आपको नंबर मिला, like 0 है फर्स्ट, उसे मुझे क्या ऐड करना है? 3. तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे किसका बाइनरी लिखना होगा? 3. So it is a 2 plus 1 means 3. So XS3 it does not depend upon weight but it depend upon the BCD. BCD में हमें 3 ऐड करना है तो हमें XS3 मिल जाएगा. That's why this XS3 it is called as a non-weighted code. And this BCD depend upon weights, that's why it is called as a weighted code. Okay, how we can find XS3? Add 3 to BCD. Same for 1. यहाँ पे क्या दिया? 1. So 1 plus 3 means क्या होगा? 4. So we have to write the binary of 4. या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं 4 का बाइनरी क्या है? 0 1 0 0. तो यहाँ से लिख सकते हैं.
Okay, so like if you consider, so 0 1 2 3 वो 0 1 2 वो जनरेट ही नहीं हो रहा इन एक्सेस 3 में, बिकॉज स्टार्टिंग से हम क्या ऐड कर रहे हैं 0 प्लस 3, सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड 3, बट अल्टीमेटली वो है क्या 0. ओके, एक्सेस 3 में if you consider the excess 3, so like binary of decimal 0, it is nothing but 0 0 1 1, but still okay 0 1 2 उसके मिसिंग हो गए फ्रॉम बाइनरी साइड. 0 1 2 यहाँ पे आए ही नहीं है स्टार्टिंग में. सेम फॉर यहाँ पे 9 तक है, सो इफ वी ऐड 9 प्लस 3, सो लास्ट मुझे क्या मिलेगा 12. 8 4 प्लस 4 मीन्स 12, बट अगेन 13 14 15 रिमेनिंग. Okay, so 0 1 2 and 13 14 15, these are the illegal codes in access 3. Okay, 0 1 2 पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे जनरेट होना. सेम फॉर अगर वो 9 तक जा रहा है BCD, सो 9 प्लस 3 कितना होगा 12. सो एक्सेस 3 का लास्ट मतलब लास्ट वैल्यू क्या होगी एक्सेस 3 की 12. 13 14 15 जनरेट ही नहीं होगा. दैट्स व्हाई दिस 6 0 1 2 and 13 14 15, these are the illegal codes. Okay, same for अगर हम if we are performing the addition of excess 3 and subtraction of excess 3, then we have to add 3 or subtract the 3, because this is the excess 3. that's why हमें क्या add करना पड़ेगा उसमें 0 0 1 1. Okay, now next it is the 8 4 minus 2 minus 1. it is very easy as like that. ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या है 0 0 0, तो मैंने 0 कर दिया. ओके, नाउ 1 का मुझे लिखना है, तो 1 का हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो -1 है, सो वी कैन राइट इन दिस वे. 4 minus 2 कितना होगा 2, एंड 2 minus 1 कितना होगा +1. ओके, सो वी हैव टू राइट लाइक 1 at 3 पोजीशन, एट -1 पे, -2 पे एंड 4 पे. दैट्स वाई 4 minus 2 minus 1, आंसर इट इज 1. सेम फॉर 2. 2 कैसे मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे तो -2 है, सो वी कैन सबट्रैक्ट 4 minus 2. okay, so हमें क्या मिलेगा 2. so we are using this 2, that's why we have to place 1 in this 2 position. Same in this way you can obtain this whole binary code. Same for 2 4 2 1, these are the weights again. 0, so we can simply write 0 0 0 0. okay, 1, so we can write 0 0 0 and 1, because यहाँ पे 1 है, that's why we can write 1. Now next 2, so now it is like a confusion, because 2 यहाँ भी है and यहाँ भी है, second number as well as fourth position पे भी क्या है 2 है, so you can write for anyone. okay, आप यहाँ पे भी like 1 लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे, लेकिन make sure दोनों जगह पे नहीं लिखना है. if you place 0 in 2 position, then it is a 2 plus 2 means क्या हो जाएगा 4. okay, so at any one position you have to write a 1, either यहाँ पे 1 लिखो या फिर यहाँ पे, so it is a 0 0 1 0. Same in this way you can write up to 9. now next one, it is a biquinary. weights आपको दिए है 5 0 4 3 2 1 0. ठीक है, फर्स्ट मुझे किसका बाइनरी लिखना है 0 का, so we can write in this way. लेकिन यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपको 0 भी दिया है पोजिशन पे, so in this 0 place you can write 1 and 1. अल्टीमेटली अगर आप 2 टाइम्स भी लिखेंगे, so 0 plus 0 it is a 0. सेम फॉर 1, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, so we can write 1. बट यहाँ भी लिखा है, बट 1 plus 0 क्या होगा 1 ही होगा. अगर आप यहाँ पे नहीं प्लेस करते हैं 1, फिर भी चलेगा. ठीक है, सेम फॉर 2 के लिए लिखना है, 3 के लिए, 4 के लिए, अप टू 9 तक. ओके, सारे वेट्स को यूज करके आपको ये कंप्लीट करना है फ्रॉम 0 to 9. ओके, सो एक्सेप्ट excess 3, all are the weighted code, because all these 4 like 1 2 3 and 4, all these 4 depend upon weight except excess 3, because how we can find excess 3, add 3 to BCD. okay, so first it is a BCD, it is also called as a natural code also. जैसे मैंने आपको बताया सेम ही लिखा, each decimal digit 0 through 9 is coded by 4-bit binary number 8421. These are the weights, it is a weighted code, and these are the illegal codes 10 11 12 13 14 15. less efficient of course, because illegal code generate हो रहे हैं, last के 6 generate ही नहीं हो रहे, so it is a less efficient compared to pure binary. and arithmetic operation are more complex than pure binary, because अगर illegal code generate हो रहे हैं, then we have to add somewhere 6, आपको 6 ऐड करना पड़ेगा एडिशन में, which is not required in pure binary. so arithmetic operation are more complex than in pure binary.
Okay, so BCD addition. Okay, so first I just write two number 25, 13. इसका आंसर क्या आएगा एडिशन का 38. In this side you to write binary of your number. 2 का क्या होगा 0010. 5 का क्या होगा it is a 4 plus 1 5. 1 का 001 and 3 का 0011. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाइनरी लिख देना है जो भी आपका नंबर दिया है उसका. ठीक है, उसके बाद उसका एडिशन किया है तो 1 plus 1 क्या होता है 10. उसमें से 0 it is your sum and 1 it is your gain. Again here 1, so 1 plus 1 0, again 1, 1 plus 1 0, again 1, so here. Okay, same 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0. Okay, कौन से like decimal digit generate हो रहे, it is a 3 and it is a 8. So I think these are the legal codes, not no illegal codes. अगर legal codes ही generate हो रही है then it's okay, it is very simple. But if illegal codes are generated, so आपका जो sum है उसमें आपको modify करना पड़ेगा. ओके यहाँ पे एक नंबर लिया, दो नंबर लिए 679.6, 536.8. एडिशन किया, कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म एंड आफ्टर दैट बाइनरी फॉर्म के लिए क्या लिखना है 6 का BCD मीन्स बाइनरी, सेम 9 का बाइनरी जो ऑलरेडी टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है, 7 का बाइनरी एंड 6 का बाइनरी, सेम 4 536.8. आफ्टर दैट वी हैव टू परफॉर्म द एडिशन. एडिशन कर दिया. अब देखो एडिशन में कौन कौन से नंबर जनरेट हो रहे हैं. ये कौन सा नंबर है 1011. Which number 1011? चलो बताओ, कौन बताएगा मुझे कौन सा डेसिमल नंबर है वो 1011. दिस वन. इसका डेसिमल क्या होता है 1011 का. कंसीडर वेटेड कोड 8421. B या 13. इट इज like 8 plus 2. So कितना हुआ 10. 10 plus 1, so it is 11. Okay, it is 8. एक्चुअल में वेट क्या क्या है इसमें 8 4 2 1. सो 0 कौन सी पोजीशन पे 4 पे, तो 4 मुझे सिर्फ काउंट नहीं करना, 8 plus 2 plus 1, so it is 11. ओके नेक्स्ट कौन सा डिजिट दिया 1010. 10. ओके नाउ नेक्स्ट all are 1, of course it is the last number 15. And this one 14. So this कौन से नंबर है हमारे पास 11 10 15 and 14 all are the illegal codes after 9. So what we have to do, add 6. अब 6 का बाइनरी फर्स्ट फाइंड करना पड़ेगा. 6 का बाइनरी क्या होगा 4 plus 2 means 6. So we have to add this 0110 in each and every term. जितने भी वर्ड्स है सब में ऐड करना है. मैंने यहाँ पे ऐड किया 0110, सेम यहाँ पे 0110, 0110 and 0110. Why we are adding 6? Why we are not trying in other number? Because only 6 are the illegal codes which are remaining. That's why we are adding 6. Okay. Now यहाँ पे एक स्टेप और परफॉर्म किया आफ्टर एडिशन. कैरी को फर्स्ट एज इट इज रख दिया, फॉरवर्ड नहीं किया. नेक्स्ट स्टेप में आपको फॉरवर्ड ही कर देना है तो डायरेक्टली आपको इस स्टेप का आंसर मिले. ओके यहाँ पे ऐड किया है देखो, और आफ्टर परफॉर्म एडिशन कैरी को एज इट इज रखा है, नेक्स्ट स्टेप में उसको ऐड किया आफ्टर एडिशन. बट यू कैन डायरेक्टली ओवर दिस लाइक 110 देख 1 यहाँ पे जाएगा मीन 3 times 1, so 1 plus 1 plus 1 means 11. so it is a 1 और एक 1 यहाँ पे जाएगा, सो अगेन 1 plus 1 0 और एक कैरी जनरेट होगी 1. वो ऑलरेडी आप यहाँ पे दे दीजिए तो डायरेक्टली 1 plus 1 0 तो ये जनरेट हो जाएगा. ठीक है, नो नीड टू डू सेपरेटली, डायरेक्टली सिंपल आप जो एडिशन करते हैं ना वो कर देना, ये आंसर आ जाएगा लास्ट वन. ओके नाउ कौन से डिजिट जनरेट हुए, ऑल आर द लीगल नंबर्स, सो इट इज अ करेक्टेड सम. ओके अगर लीगल नंबर जनरेट नहीं हो रहे देन अगेन वी हैव टू ऐड. जैसे क्या है 1 2 1 6 and 4 is like that, it is a 1 2 1 6 4. Okay, sometimes if
sum of two digits are less than 10, so अगर less than 10 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. BCD addition is similar to binary. Pure binary and BCD addition up to 9 digits same है. But if your sum greater than 9, the result requires the correction, and this correction क्या है? 0110 means we have to add 6. Okay, why do we add 6? I already explained, and why not try for some other number which I already explained. Okay, now subtraction. Of course, this subtraction is a more complicated compared to addition, as like in decimal. Okay, BCD subtraction. यहाँ पे मैंने subtract कर दिया simply. Okay, after that we have to perform the binary subtraction जो हमने किया था. First of all क्या लेना है? 2. 2 minus 1, 1. ठीक है. Now बोरो क्या आएगी यहाँ पे? 1. वो 1 कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक इसको 1 नहीं मिल जाता, this 1 becomes 0, तब तक ये 1 यहाँ पे forward होगा. So 1, so 1. 1 minus 1, 0. जैसे ही यहाँ पे 1 होगा ये क्या हो जाएगा? 0. तो 0, 1 minus 1, 0, 1, 0 and 0. कौन से कोड जनरेट हुए? 2 and 3. तो दिस 2 आर द लीगल कोड एज वेल एज नो बोरो. कोई भी बोरो भी जनरेट नहीं हो रही एक्स्ट्रा यहाँ पे. सो दिस इज द करेक्ट डिफरेंस. ओके, नो बोरो जनरेटेड, सो दिस इज द करेक्ट डिफरेंस. ओके, लेकिन अगर बोरो जनरेट हो रही क्या करना है? जो हम एडिशन कर रहे थे उसकी जगह पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है. ओके, जैसे मैंने 2 नंबर लिए, सबका बाइनरी लिखा है. If we do the subtraction, these 3 terms produce the boro. Okay, and this particular subtraction does not produce any boro. कोई भी बोरो उसमें नहीं आएगी. That's why इस नंबर को आपको as it is रखना है. बाकी जो भी subtraction हुआ है उसमें मुझे क्या करना है? subtract करना है 0, 1, 1, 0. जो भी आपका आंसर आ रहा है subtraction का, उसमें से क्या subtract करना है? 0, 1, 1, 0. जैसे आप subtract करेंगे आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा. इफ बोरो आर प्रेजेंट देन एंड देन यू टू सब्ट्रैक्ट. अगर बोरो प्रेजेंट नहीं है तो आपको कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है उसमें. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ले रहे, ठीक है, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे 2 लूंगी तो बोरो तो नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड होगा ही. मतलब बोरो स्टेप से वो फॉरवर्ड हुआ, मतलब बोरो प्रेजेंट है. सेम जैसे यहाँ पे 2 आया, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया था? सॉरी 2. 2 minus 1 क्या होगा यहाँ पे? 1. तो अब यहाँ पे 1 हुआ, वो 1 फॉरवर्ड होगा, तो 1 minus 1, 0. यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो 0. So it is a 2 minus 1, so 1. Again it's become 0, so 2 minus 1, 1. Again कैरी क्या फॉरवर्ड होगी? 1. सॉरी बोरो. सेम वो बोरो यहाँ पे जाएगा. So 1, 1, 1 minus 1, 0. यहाँ पे क्या हुआ? Again 1. ठीक है, ये हो गया. यहाँ पे क्या फॉरवर्ड हुआ? 1. और वो 1 कब तक जाएगा? नेक्स्ट तक. लेकिन ये उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा. जैसे यहाँ पे 1 गया तो 1 minus 1 क्या होगा? 0. यहाँ पे 0. बट ये स्टेप पर्टिकुलर बोरो फॉरवर्ड नहीं कर रहा है. आगे के जो 3 स्टेप है वही सिर्फ बोरो मतलब बोरो ले रहे हैं, या फिर बोरो फॉरवर्ड कर रहे हैं, या फिर बोरो प्रेजेंट है. कौन से? ओनली 3 स्टेप, मतलब 3 वर्ड में. लास्ट वाला है ना, उसमें बोरो प्रेजेंट नहीं है. दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड, sorry, that's why we have to subtract 6 means 0, 1, 1, 0 in from only 3 words. लास्ट वर्ड में से नहीं करना है बिकॉज उसमें बोरो प्रेजेंट नहीं था. जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको करेक्ट डिफरेंस मिल जाएगा. इट इज 9, इट इज 8 and 5 is like that 58.9. so it is a BCD subtraction. सिर्फ आपको याद क्या रखना है? if it is addition then you have to add, अगर you have to add 6 अगर illegal codes है तो, ठीक है. And for subtraction, if boro are present then you have to subtract 6. Next one, it is a excess 3 code. I already explained how we can find excess 3. We have to add 3 into BCD. So 8, 4, 2, 1 BCD plus क्या आएगा? 3. It is 0, 0, 1, 1. We have to 8. Okay. Excess 3 code, it is a non-weighted code. Also, it is known as a self-complementing code. वो मैं आपको बताऊंगी why it is called as a self-complementary code. And these are the illegal codes which I explained. 0, 1, 2 वो जनरेट ही नहीं हो रहे. Same 9 BCD का लास्ट डिजिट है. So if we add 3, so 9 plus 3 means मुझे क्या देगा? वो 12 means 13, 14, 15 वो जनरेट ही नहीं हो गए. That's why 0, 1, 2 and 13, 14, 15. These are the illegal codes. Okay. Okay, now why this excess 3 code is a self-complementary code?
not like XS3, but XS3, 2421, 84 minus 2 minus 1, all are the self-complementary code. And why these are called the self-complementary code? Because if we take the 9th complement of particular number, then we can directly obtain this 9th complement by changing 1 to 0 and 0 to 1 in its binary form. Like कोई एक मुझे नंबर दिया है 395, उसको मैं फर्स्ट बाय यूजिंग 2421 बाइनरी कोड अगर मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रही है, मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो अगर मुझे इसका 9th कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो सिर्फ डायरेक्टली अगर मैं इसको चेंज कर दूं 1 to 0 and 0 to 1, सो आई कैन फाइंड। बट आपको यहाँ दिया भी है, देखो 395 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 604। हाउ वी कैन फाइंड 9th कॉम्प्लीमेंट? ईच एंड एवरी डिजिट सबट्रैक्ट फ्रॉम 9। So 9 minus 5, 4, 9 minus 9 means 0, 9 minus 3 means 6. Now convert this number into binary form so we can find like that. So it is simple with a complement. देखो 1 का 0 हो गया, 0 का 1. But no need to do this. इसकी कोई requirement नहीं है. Why it is called self-complementary? Because 9th complement of 395 is directly obtained by changing 1 to 0 and 0 to 1. That's why this XS3, 2421, 84 minus 2 minus 1. You can you can represent your number in any this 3 format. So you can apply this self-complementary code. Next one, it is a addition as like BCD, XS3 addition, XS3 subtraction. Okay. XS3 दो नंबर दिए आपको, एडिशन परफॉर्म करना है 3, 7, 2, 8. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 3 का बाइनरी, बट इफ इट इज लाइक XS3 देन वी हैव टू ऐड 3 मोर इन 3. सो 3 plus 3 मीन्स क्या होगा 6. सो वी हैव टू राइट द बाइनरी ऑफ 6. 4 plus 2 मीन्स 6. 7, सो वी हैव टू ऐड अगेन 3. 7 plus 3 क्या होगा 10. सो इट इज 8 plus 2 10. 2 का XS3 क्या होगा 2 plus 3 means 5. So it is a 0, 1, 0, 1. 4 plus 1, 5. If it is 8, so 8 plus 3 क्या होगा 11. So it is a 1, 0, 1, 1. Okay? 12 तक XS3 में सब सही है क्योंकि वो 12 तक ही जाता है. 13, 14, 15 these are the illegal code in XS3. Okay, now perform the addition. Same single step में ही आप complete कर देना. यहाँ पे जो भी like carry generate हुई है वो यहाँ पे forward ही कर देना. No need to do this particular step for carry. So 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 0, and carry it is forwarded, it is a 1. So here we can write 1. Again 1 plus 1, 0 and 1. 1 यहाँ पे forward होगा, so क्या होगा 1 plus 1, 0, 0 and यहाँ पे देखो 0, ठीक है 0 and 1. So again 1 plus 1, so 0 and 1. So now it is a 3. 1 plus 1 तो 11. So 1 and 1. So we can write here 1. So carry सिर्फ एक ही step मुझे दे रहा है. So now what is the difference in addition? If carry is generated, okay, so we have to add 3, 0, 1, 1 in this particular byte or word. But if particular word does not generate any carry, then we have to subtract 3, 0, 1, 1. अब इसमें भी differentiation आ गया. If carry generated, not generated. अगर कैरी जनरेट हो रही ये स्टेप कर रहा है, कैरी जनरेट हो रही है इसमें, तो वी हैव टू ऐड 0, 1, 1. लेकिन अगर इस स्टेप में कैरी जनरेट नहीं हो रही है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली 1 आएगा, कैरी जनरेट नहीं हो रही है इसमें, देन वी हैव टू सबट्रैक्ट 0, 0, 1. Then you can find your answer. It is a 5. Okay, in this way we can find our answer. यहाँ पे देखो आंसर कैसे वेरीफाई करना. 5 plus 3 कितना होता है 8. तो दैट्स वाई हियर हमने क्या फाइंड किया 8. 6 plus 3 कितना होगा 9. So it is a 8 plus 1, it is 9. Now XS3 addition. For more complicated like example, here I just take this type of example. Again 2 plus 3 means क्या आएगा 6. Okay, 2 plus 3 means it is a 5. So we can write a binary of 5. Same for 4 plus 3 7, 7 plus 3 10 and 6 plus 3 9. Same इस तरह सबका बाइनरी आपको लिखना है आफ्टर एडिशन ऑफ 3. इफ कैरी जनरेटेड, ये दोनों टर्म जनरेट कर रही है सेम जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन किया, ठीक है. उसके बाद सेपरेटली काउंट करके यहाँ भी किया, बट आप साथ में ही कर देना, ठीक है. सो दिस 3 टर्म्स जनरेट द कैरी.
तीनों टर्म में कैरी जनरेट हो रही है, दैट्स वाई वी हैव टू ऐड 3 into these 3 terms. लास्ट ना वो कोई भी कैरी जनरेट नहीं कर रही है, दैट्स वाई इट इज ए -0011. मतलब in this 3 we have to add 3 and this particular term we have to subtract 3. Okay, so in this way you can find your answer. So like XS3 addition and it is simply covered in your like syllabus. It is not like many times asked in GTU. Normally binary number conversion, subtraction using complement, these are the most important. ये नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल इन सिलेबस में दिया है तो वन टाइम आपको इसको देखना पड़ेगा. इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप मोरिस में या आनंद कुमार में से कर सकते हैं. ठीक है. सेम फॉर सब्ट्रैक्शन. ओके, सब्ट्रैक्शन में क्या है देखो, सेम 2 नंबर दिया है, अगेन 3 ऐड करना है, 2 + 3 मीन्स 5, सो इट इज 4 + 1 5. इस तरह से बाइनरी लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, जिस पर्टिकुलर टर्म ओके जनरेट द बोरो एंड दिस 2 टर्म डज नॉट जनरेट एनी बोरो, तो उसमें आपको ऐड करना है, और जो भी बोरो जनरेट कर रही है उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. इफ यू कंसीडर 0 - 0 क्या होगा 0, 1 - 0 क्या होगा 1, 0 0 0, 1 - 1 0. सो बोरो जनरेट हो रही है, नहीं हो रही है, तो क्या ऐड करना है उसमें 3. ओके, सेम फॉर हियर 1 - 0, सो क्या होगा 1. अगेन यहाँ पे तो मुझे बोरो लेनी ही पड़ेगी ऑफ कोर्स, 2 - 1. ठीक है, यहाँ पे होगी कि बोरो लेनी पड़ेगी नहीं, सो इट इज ए 1 माइनस, लेकिन आगे की फॉरवर्ड होगी. यहाँ पे एक मिनट परफॉर्म कर ले, देख ले. 1 - 0, सो इट इज ए 1. 2 - 0, सो इट इज 1. 1 फॉरवर्ड होगा अप टू नेक्स्ट 1, सो क्या होगा यहाँ पे 1. ये जैसे ये 0 बन गया, 1 का 0, तो यहाँ पे 2 लेंगे वापस, 2 - 1 क्या होगा 1. अगेन यहाँ पे क्या था 1, तो 1 का क्या हो जाएगा 0. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इसमें बोरो की अफेक्ट हो रही है बट जनरेट नहीं हो रहा है. ओके, फर्स्ट एंड थर्ड डज नॉट जनरेट एनी बोरो, देन वी हैव टू ऐड 3, and this middle term generate the boro, that's why we have to subtract 3, 0 0 1 1. So in this way you can find your answer. Same for next example for subtraction. I think हमने यही किया कि सेम था, डिफरेंट है. ओके, सेम इसमें देखो, यहाँ पे इसमें कैरी जनरेट हो रही है. ऑफ कोर्स कहीं भी आप लेंगे 2 - 1 तो कैरी जनरेट होगी. सेम यहाँ भी इसकी अफेक्ट आएगी, दैट्स वाई जनरेट हो रही है. ठीक है, और यहाँ पे जनरेट नहीं होगी, सो इफ वी हैव टू ऐड 0 1 1 इफ कैरी डज नॉट जनरेटेड, एंड सब्ट्रैक्ट कहाँ पे करना है, जहाँ पे कैरी क्या हो रही है, सॉरी बोरो. सब्ट्रैक्ट कहाँ पे करना है आपको, जहाँ पे बोरो है वो जनरेट हो रही है. ठीक है, आप देख लेना ये दोनों टर्म में क्या जनरेट हो रही होगी, बोरो. और इस पर्टिकुलर टर्म में अगर बोरो जनरेट नहीं हो रही है, देन वी हैव टू ऐड 0 0 1 1 एज लाइक बिफोर. नेक्स्ट है ग्रे कोड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम आस्क इन GTU ग्रे कोड. ओके, what is gray code first of all, and what is like a different how we can differentiate this gray code from any other binary codes. In gray code only one bit changes between each pair of successive code word, means if we are going from 0 to 1, so only one digit change. If we are going 1 to 2, then again only one digit change. Okay, so it is only one digit change or bit change between each pair of code word. It is also called as the reflected code, reflected binary code, reflected binary, and gray binary. After the scientists, it is a Frank Gay, which is like ordering the numeric binary numeral system such that two successive value differ in only one bit. Okay, क्या main important characteristic क्या है इस particular code की, कि only one bit change between each pair of successive code word. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइक व्हाट इज ग्रे कोड ऐसा नहीं पूछेंगे, शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, बट नॉर्मली क्वेश्चन इज लाइक दैट कि बाइनरी नंबर इज गिवन, यू टू कन्वर्ट इट इनटू ग्रे, और ग्रे नंबर इज गिवन, यू टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी टू ग्रे, इट इज वेरी इजी. यू टू अप्लाई XOR गेट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे बताइए कि XOR गेट आपको 1 कब दे रहा है, फॉर विच कॉम्बिनेशन XOR गेट
gives the 1? चलिए बताइए फर्स्ट. For which combination XOR gives the 1? चलो 0 1 1 0. 0 1 and 1 0. If two inputs are different, then and then your XOR output is 1. ओके अगर दोनों डिफरेंट है तभी आपका आउटपुट क्या होगा 1. एंड अनदर नेम ऑफ XOR इट इज आल्सो लाइक इनइक्वालिटी डिटेक्टर आल्सो. अगर दोनों इनपुट सेम है तो 0 आंसर मिलता है, इधर वो 0 0 है या 1 1. लेकिन इफ टू आर डिफरेंट देन द आंसर इज 1 फॉर XOR गेट. सो वी हैव टू अप्लाई दिस XOR गेट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाइनरी नंबर दिया है 1 0 0 1. ओके इक्वेशन आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ तो वो जल्दी हो जाएगा. फर्स्ट कैसे करना है वो बता देती हूँ. 1 एज इट इज रखना है, ठीक है. यहाँ पे जो 1 है वो फर्स्ट हायर पोजीशन पे जो 1 है या फिर कोई भी डिजिट है उसको एज इट इज रखना है, इधर 1 है या 0. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द XOR ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज प्रीवियस. जैसे यहाँ पे पहुंचे तो 0 एंड प्रीवियस उसका क्या करना है XOR. सो 1 एंड 0 का XOR क्या होगा 1. सेम 0 एंड 0 का XOR क्या होगा 0. 0 1 का XOR क्या होगा 1. So your answer it is a 1 1 0 1. It is very easy. Binary to gray. First one को as it is रखना है. After that for 3 combination we have to apply 3 times XOR gate. 1 0 पे 0 0 पे XOR apply करना and 0 1 पे. मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं देखो. Gn is equal to Bn मतलब ये लास्ट की बात की गई हर पोजिशन की. Gn is equal to Bn. Gn क्या है as like Bn. नेक्स्ट डिजिट कैसे फाइंड आउट करना है आपको. सो Bn मतलब ये प्रेजेंट XOR विथ Bn माइनस 1 एंड दिस इज कंटिन्यू अप टू लास्ट. ओके इट इज अ बाइनरी टू ग्रे. आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट 16 कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी जो आपको आते ही है, ठीक है. 0 to 15 तक बाइनरी के कॉम्बिनेशन लिख देना है आपको सारे 1 and 0 के, ठीक है. उसके बाद जितने भी बाइनरी है सबको 1 by 1 क्या करना है ग्रे में कन्वर्ट करना है. आफ्टर दैट अगेन ग्रे टू किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में. अगर दोनों सेम है मतलब आपने सही कन्वर्ट किया. ओके सो बाइनरी टू ग्रे सेम वी कैन परफॉर्म ग्रे टू बाइनरी बट लिटिल डिफरेंस. वी हैव टू अप्लाई द XOR गेट इन अ क्रॉस वे. देखो कैसे अप्लाई करना. फर्स्ट वन एज इट इज रहेगा. After that we have to apply XOR in a cross direction. Like 1 and 1 का binary क्या होगा XOR 0. After that 0 and 0 XOR of 0 and 0 0. Again XOR of 0 and 1 it is 1. Okay cross में आपको XOR लेना है. Otherwise first one as it is रखना है and cross में क्या लेते जाना है आपको XOR. क्या डिफरेंस था आगे जो हमने किया बाइनरी टू ग्रे उसमें आपको हॉरिजॉन्टल में XOR लेना है. यहाँ पे ग्रे टू बाइनरी में आपको क्रॉस में जाना है. सेम इक्वेशन भी सेम ही है. देखो Bn इज इक्वल टू Gn वो तो सही है. नेक्स्ट मुझे ये ऑब्टेन करना है, ठीक है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी एक तो Bn लेना है इनटू क्या आएगा XOR विथ Gn माइनस 1 एंड इट इज ए कंटिन्यू. ओके सो टेबल बना के एक बार प्रैक्टिस कर लेना. कोई भी बुक में भी देखने की जरूरत नहीं है. सिंपली 16 कॉम्बिनेशन लिख दीजिए बाइनरी के. बाइनरी टू ग्रे कर दीजिए एंड ग्रे टू बाइनरी. इफ दिस 2 कॉलम्स फर्स्ट एंड थर्ड अगर मैच हो रही है मतलब आपने सही कन्वर्जन किया है. इट इज दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन मेनी टाइम आस्क इन GTU सो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करना. ग्रे कोड रिफ्लेक्टेड कोड. ओके ग्रे कोड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए reflected code and most important characteristic of gray code it is a only one digit change between the successive pair of code word. Next है error detecting codes. Okay now first of all what is error detecting code and what is the requirement. जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ मतलब यहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और आप है वो अपने PC या फिर अपने मोबाइल में लिसन कर रहे हैं मतलब आप रिसीवर है, ठीक है. अब मैं यहाँ से जो भी ट्रांसमिट कर रही हूँ वो मिड वे में कहीं भी नॉइस आ सकता है बिकॉज ऑफ लो इंटरनेट कनेक्टिविटी और एनी अदर और एटमोसफियर इट इज ऑल्सो अफेक्टेड. बिकॉज ऑफ दिस मेरा साउंड क्या होगा मेरा वॉइस उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा. ओके और आपको प्रॉपरली सुना ही नहीं देगा. सो इट इज ए लाइक अ एरर.
But if you consider in digital form, so it generates the serious problem. Like मैंने यहाँ से ट्रांसमिट किया है 101 एंड बिकॉज ऑफ नॉइस अगर वो 011 हो गया, एक भी वन अगर चेंज हो जाता है मीन्स इट जनरेट द प्रॉब्लम इन डिजिटल. डिजिटल के जितने एडवांटेजेस है उतना ही आपको उसके जो भी एरर है उसमें मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि एरर जनरेट ना हो. मीन्स एरर डिटेक्टिंग एज वेल एज करेक्टिंग कोड ऑल्सो. सो नॉइस कैन अल्टर और डिस्टोर योर डेटा इन ट्रांसमिशन. वन may get changed to 0 and zeros to 1 ऐसा भी हो सकता है. Because digital system must be accurate to the digit, error can pose a serious problem. Single bit error should be detected and correct by a difference scheme. These are the scheme. ये 3 जो आपको दी है, parity, checksum, block parity. These are the scheme to detect or correct your error. Okay, parity, checksum and block parity. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, अदरवाइज सबकी इंडिविजुअल स्लाइड है ही. व्हाट इज पैरिटी? इट इज अ इवन पैरिटी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी. ओके, इफ दिस पैरिटी बिट वी हैव टू एक्चुअली ट्रांसमिट दिस पैरिटी बिट विथ अवर ट्रांसमिशन डेटा. इफ पैरिटी इज वायोलेटेड मीन्स चेंज हो जाती है, मीन्स रिसीवर कैन डिटेक्ट कि एरर जनरेट हुई. सो आइदर वो रीट्रांसमिट करेगा ट्रांसमीटर या फिर उसको करेक्ट करने की ट्राई करनी है. ठीक है, एट द रिसीवर साइड. नेक्स्ट है चेकसम. चेकसम इट इज लाइक ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने पैरिटी लाइक एक बिट दिया था वो चेंज हो गया, मतलब बाकी के सारे सेम थे. तो चेकसम में क्या करना है, जितने भी बिट है सबका एडिशन करना है. तो अगर वो एडिशन चेंज हो जाता है रिसीवर साइड तो पता चल जाएगा कुछ ना कुछ इसमें एरर जनरेट हो रही है. सेम ब्लॉक पैरिटी मीन्स यू कांट कंसिडर द इंडिविजुअल बाइट like 0011 something. We can consider like 0 to 5 numbers, 0 to 5 binary numbers, so we can consider it is a block. And after that we have to check it row wise and column wise, error generated or not. First one, parity. Okay, parity, it is a very simple technique. Two types of parity, odd and even parity. For odd parity, parity is set to 0 or 1 at a transmitter such that a total number of 1 bits in a word including the parity bit is a odd number. मतलब आपको कैसे सेट करना है कि जैसे मेरा डेटा था कि 0011 तो 112 टू टाइम्स है, मतलब उसमें इवन पैरिटी आप कर सकते हैं. ठीक है, बट मैंने एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड किया उसमें पैरिटी जिसकी वैल्यू मैंने लिखी है 3. तो आपको पैरिटी क्या हो गई है 3 times 1 मीन्स ओड पैरिटी. ओके, एडिशन ऑफ योर नंबर एंड पैरिटी. उसमें अगर नंबर्स ऑफ 1 इफ इट इज ए इवन देन वी कैन कंसीडर इट इज अ इवन पैरिटी. एंड टोटल नंबर्स ऑफ 1 प्रेजेंट इन योर वर्ड इंक्लूडिंग पैरिटी, इफ इट इज ए ओड देन वी कैन कंसीडर इट इज अ ओड पैरिटी. ओके, आपको नंबर लेना है, पैरिटी भी लेनी है. ठीक है, अगर सबको मिला के पूरे नंबर में नंबर्स ऑफ 1 अगर ओड है देन इट इज अ ओड पैरिटी एंड इवन है देन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इवन पैरिटी. लाइक योर नंबर है, आपको दिया है कि 0110 नंबर हैज अ 1. अगर मैं 1 इसमें रख रही हूँ यहाँ पे 5th डिजिट में प्लस कर रही हूँ 1, सो हाउ मेनी वंस 3, वी कैन कंसीडर इट इज अ ओड पैरिटी. बट 1 की जगह पे मैं यहाँ पे 0 प्लस करती हूँ एज माई पैरिटी बिट, सो इट इज अ इवन पैरिटी. ओके, यहाँ पे मैंने मॉरिस मेनो का मतलब एक पिक्चर लिया हुआ फॉर ओड पैरिटी एंड इवन पैरिटी. देखो यहाँ पे 000 था, तो अगर मुझे ओड पैरिटी जनरेट करनी है तो ऑफ कोर्स मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 1. देन एंड देन मैसेज इंक्लूडिंग पैरिटी टोटल नंबर्स ऑफ 1 प्रेजेंट क्या होंगे 1 मीन्स इट इज अ ओड. अगर मैं यहाँ पे 0 कर रही हूँ तो वो इवन पैरिटी हो जाएगी. नो 0 मतलब वो इवन, नो 1 मीन्स इट इज कंसिडर्ड एज ए इवन. सेम यहाँ पे सेकंड डिजिट है तो उसमें कितने 1 प्रेजेंट है 1. तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे क्या पैरिटी क्या लेनी पड़ेगी 0. देन एंड देन इट बिकम्स ओड पैरिटी. अगर मैं यहाँ पे 1 कर देती हूँ सो टोटल नंबर्स ऑफ 1 इंक्लूडिंग मैसेज एज वेल एज पैरिटी कितने हो जाएंगे 2. सो इट जनरेट द इवन पैरिटी, बट मुझे कौन सी जनरेट करनी है ओड पैरिटी. दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट 0. सेम फॉर यहाँ पे 0. अब यहाँ पे 2 है तो ऑफ कोर्स मुझे 1 ही लिखना पड़ेगा, देन एंड देन इट बिकम्स ओड. इन दिस वे यू कैन कंप्लीट. सेम फॉर इवन, देखो यहाँ पे इवन पैरिटी है तो यहाँ पे मुझे 0 ही लिखना पड़ेगा, देन एंड देन इट इज इवन. सेम यहाँ पे 1 है तो मुझे यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, तभी टोटल नंबर्स ऑफ 1 कितने होंगे 2.
message including parity. Same for here, we can write 2. यहाँ पे already 2 है, so यहाँ पे मुझे 0 ही लिखना पड़ेगा. 3 लिखूंगी तो वो odd parity हो जाएगी. So in this way you can send your message with parity. तो जैसे मैंने यहाँ पे सेंड किया कि odd parity, बाय डिफॉल्ट कोई भी एक नंबर चेंज हो गया, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है पेरिटी चेंज हो गया या फिर मैसेज में कोई बीट चेंज हो गया, तो वहां पे क्या दिखाएगा कि इवन पेरिटी. ओके, बट मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सा बीट चेंज हुआ है. सिर्फ वहां पे रिप्रेजेंट होगा ओड का इवन और इवन का ओड एट द रिसीवर साइड, बट यहाँ पे कितने हुए हैं वो मुझे नहीं पता चलेगा. ठीक है. सो दूसरा एक वे है, इट इज ए चेकसम. पेरिटी इट इज नॉर्मली यूज्ड टू डिटेक्ट द सिंगल बीट एरर बट कैन नॉट डिटेक्ट 2 और मोर एरर विद इन सेम वर्ड. जैसे मैंने आपको बताया कि 2 वर्ड में उसको नहीं पता चलेगा, एक बीट वायोलेट हुआ मतलब ओड की इवन पेरिटी हो गई उतना ही पता चलेगा, या फिर इवन की ओड पेरिटी हो गई. बट अगर 2 एरर जनरेट हो रही है, 2 डिजिट में एरर जनरेट हो रही है, सो वो फाइंड नहीं कर सकता है. in any practical system there is always a finite probability of occurrence of single error. In even parity scheme, this code it is erroneous because of numbers of 1 कितने हैं 5, कितने हैं 1 2 3 4 5, while code this is error free because number of 1 is even. आपको अगर इवन पेरिटी स्कीम दी है, अगर रिसीवर साइड ये जनरेट हो रहा है, सो कितने नंबर्स ऑफ 1 प्रेजेंट है 5, सो इट इज ए ओड पेरिटी, मीन्स आपको जो नंबर मिला है वो कैसा है विथ एरर. लेकिन अगर रिसीवर साइड आपको ये नंबर मिल रहा है कि 1 1 1 0 1 1 0, सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 1 प्रेजेंट 6, सो वी कैन राइट इट इज ए मीन्स इट इज ए राइट नंबर, नॉट विथ एनी एरर. बट इसमें भी प्रॉब्लम है, ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे लाइक नंबर मैंने सेंड किया था ओड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या बन गया है इवन. बट पेरिटी में प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ एक ही डिजिट को डिटेक्ट कर सकता है. 2 डिजिट अगर वायोलेट होंगे फिर भी आपको एरर तो नहीं मिलेगी ना. इवन पेरिटी थी, लाइक मैंने 6 सेंड किए थे, 6 1 थे, लेकिन रिसीवर साइड मुझे 8 1 मिल गए, फिर भी पेरिटी क्या बचेगी आपके पास इवन पेरिटी, स्टिल 2 डिजिट आर चेंज. ओके, सो दिस पेरिटी ओनली डिटेक्ट 1 बीट ऑफ एरर, नॉट करेक्ट. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ डिटेक्ट ही करता है, कोई भी एक बीट में एरर वो डिटेक्ट करता है कि बीट चेंज हुआ, बट कौन सा बीट चेंज हुआ वो भी उसको नहीं पता चलता. ओनली सिंगल बीट एरर डिटेक्टेड, ओनली पेरिटी. नेक्स्ट वन चेकसम. सिंपल पेरिटी कैन नॉट डिटेक्ट 2 एरर विद इन सेम वर्ड. Okay, so added to sum of previously transmitted word at the transmission, the checksum up to that time is sent to the receiver. Okay, normally इसमें क्या करना है, जो भी पूरा वर्ड है, ठीक है, उसका क्या करेंगे हम checksum, मतलब सम में वो ट्रांसमिट करेंगे. एट द रिसीवर साइड क्या था एंड सॉरी ट्रांसमीटर साइड क्या था एंड रिसीवर साइड क्या है, वो कंटिन्यूसली उसका checksum क्या होगा, ट्रांसफर होगा. ओके, सो इफ चेकसम इज वायलेटेड तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ है, उसमें कहीं पे डिजिट में क्या है प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल नॉट डिटेक्टेड कि कौन से पर्टिकुलर डिजिट में एरर है. द रिसीवर कैन चेक इट सम विथ ट्रांसमिटेड सम. इफ द 2 सम्स आर सेम देन नो एरर आर डिटेक्टेड एट द रिसीवर एंड. If there is an error, receiving location can ask for retransmission of entire data, and this type of transmission it is used in teleprocessing system. Next one is the block parity. Okay, it is normally used for multiple parity checker. This code use the multiple parity bits. यहाँ पे देखो मेरे नंबर्स ऑफ, नॉट लाइक 1 by 1 सबको चेक नहीं करना है, पूरे ब्लॉक को क्या करना है चेक करना है. एवरी टाइम सबका क्या चेक करना है, रो एज वेल एज कॉलम. ओके, पेरिटी रो है ही और ये क्या है पेरिटी कॉलम. एवरी टाइम सबको क्या करना है चेक करना है. ठीक है, यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब पेरिटी नॉर्मली इसमें कितनी है, सॉरी ओड पेरिटी है, ओड पेरिटी. ओके, पेरिटी रो एज वेल एज पेरिटी कॉलम. ठीक है, सेम फॉर हियर. यहाँ पे देखो 1 2 3 4, मतलब क्या हुआ इवन पेरिटी जनरेट हुई, मतलब ये रो में मिस्टेक है.
कौन सी रो, थर्ड नंबर की, बट यहाँ पे देखो 1 and 1 क्या हुआ, 1, एक मिनट, यस 1 and 1 सेम, ये डिजिट में भी क्या आएगा, उसकी वजह से मिस्टेक आएगा. सो दिस पर्टिकुलर रो जनरेट द इवन पेरिटी, रो वाइज एज वेल एज कॉलम वाइज यू कैन ऑल्सो चेक. सेम फॉर हियर, यहाँ पे देखो क्या जनरेट हुआ है, 1 2 3, ओके 2 डिजिट है उसमें मिस्टेक है, फिर भी इवन ओड पेरिटी जनरेट हो रही है, बट वो इस साइड नहीं आएगा. यहाँ पे देखो 1 2 3 हो गया, नाउ 1 2 3, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है, देखो इसमें एरर है दोनों डिजिट में. स्टिल दिस पर्टिकुलर रो पेरिटी एज वेल एज कॉलम पेरिटी गिव्स द ओड पेरिटी. सो आपको इसमें पता ही नहीं चलेगा कि जो भी मैंने सेंड किया है डेटा उसमें एरर कहाँ पे है, या फिर इवन पेरिटी है या फिर ऑड पेरिटी है. ठीक है, यहाँ पे देखो 3 है, फिर भी दोनों बिट्स से वो क्या हुए, चेंज हुए, लेकिन 2 टाइम्स चेंज हो गए, इसलिए 5 में से क्या हो गया, 3. सो 3 मीन्स ऑड में ही काउंट होता है. सो 2 डिजिट वायोलेट हुए हैं, फिर भी वो आपको क्या दे रहा है कि इट इज करेक्ट. सो ये 3 टाइप्स में आप उसको क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं. पेरिटी थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं, चेकसम कर सकते हैं, एज वेल एज ब्लॉक पेरिटी में आप पेरिटी रो एज वेल एज पेरिटी कॉलम, मतलब अगर पेरिटी रो है वो सही है, लेकिन अगर पेरिटी कॉलम है उसमें मिस्टेक है, सो हम लाइक आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर मीन्स वर्ड इट इज ए रॉन्ग मीन्स एंड अप्लाई फॉर द रीट्रांसमिशन. ठीक है, आइदर यू चेक रो और कॉलम, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों करेक्ट आ रहे हैं फिर भी मतलब रॉन्ग है. देखो ये दोनों चेंज हो चुका है, दोनों बिट, फिर भी रो पेरिटी एंड कॉलम पेरिटी वो तो ओडी आ रही है. ओके, सो अगेन मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन ब्लॉक पेरिटी also. Okay, we have to place this parity bits in position of power 2. Okay, Hamming code next one. It is a very important to detect as well as for correction of error. Okay, Hamming code normally used for detection and correction of error. I think we have to stop here.